everyone, welcome to Yopedia and this is Shobhya. So this video is for all the ones who are preparing for BEL, that is Bharat Electronics Limited. Now you see the name in itself has electronics in it and you are a mechanical engineer, just suppose it out. Now how would you be justifying your roles in BEL? Also you should be having a ground knowledge on what horizons does BEL actually works in. For this you should have an enriched and a most thorough knowledge about the organization too. Now, through this video, I'm going to highlight the most important pointers that you need to know once you're preparing for this organization. Also, I tell you, whenever you're going for any organization, you need to have a good amount of detail related to its management, the history part, when it was like formulated, under which this ministry does it pop in, about, you can say, the products which it deals with, the expansion and the horizons, the current recent projects, the CSR activities, the mission and vision, and whatnot. There are many other important things that you need to know once you're preparing for any organization. Now, the next important thing, what are the most expected HR questions that could be asked in your interview? In this documentation, you're going to get everything. So it's one go assess to all. And for this, you just need to go to the Yopedia panel. There in the download section, you will have this documentation. Download it out, practice it on your own, and then practice with the mentors to get the right feedback for your interview, for your right preparation. Now let's get started. And in this video, I'm going to showcase the glimpse what you need to know about BEL. Basically, you need to know that it's a Navratna PSU under the Ministry of Defence, Government of India, and it has expanded its interest. Like basically, first it was manufacturing the electronic products and services for Army, Navy and Air Force. Then it expanded its grounds for some smart cities, for the productions related to Homeland Security solutions, e-governance, space electronics, satellite integration and whatnot. So all these things are already listed at the very start. Then related to the history, suppose they just ask you, what do you know about BEL? So you should be aware कि BEL की formulation कब हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, या फिर ये कैसे एक लीडिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में लीड करता है, ये कहाँ फाइंड किया गया था, बैंगलोर कर्नाटका in 1954. Now ऑल दीज थिंग्स आपको आकाश के बारे में, ईवीएम्स के बारे में, जैसे इसने रेवोल्यूशनाइज किया है और बेल ने इनमें भी अपने टेम्पर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट प्रूफ प्रोसेस के साथ इनमें वॉलंटियरिंग की है. एंड इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड, इट हैज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन द मेडिकल में कहाँ किया है उन्होंने हेल्प इन 30,000 ICU इन वेंटिलेटर्स इन अ रिकॉर्ड टाइम टू हेल्प गवर्नमेंट कॉम्बैट द कोविड पेंडेमिक. तो मतलब दे हैव एंटर्ड इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स एंड यू शुड बी अवेयर कि ईवीएम्स में कैसे हेल्प किया था इन्होंने कोविड के टाइम में कैसे हेल्प किया था. सो बेसिकली इनका नॉन डिफेंस शेयर जो है ओवरऑल बिजनेस में बहुत इंक्रीज हो चुका है. देन अबाउट ईवीएम्स ये सारा एक बार पढ़ लेना. नाउ कम द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सी बेसिकली विजन इज योर लॉन्ग टर्म गोल, लाइक आफ्टर 10, 15, 20 years. What is that goal you are looking for, and how does the vision of yours align with the vision of the organization? Mission आता है आपका short term goal. तो basically to be world class enterprise in professional electronics is the vision, and to be a customer focused globally competitive company in defense electronics and other chosen areas of professional through quality technology and innovation. This is their mission. Objectives किस किस के साथ डील करते हैं, just have the glimpse of it कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें आपको required है. नाउ नेक्स्ट कम्स अ मैनेजमेंट पार्ट कि हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मिस्टर मनोज जैन है. डायरेक्टर अदर यूनिट्स के डायरेक्टर इन फाइनेंस, डायरेक्टर इन HR, मार्केटिंग, ये सारे आपको चीज़ें मिलेंगी. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. सपोज दे आस्क यू अबाउट, डू यू नो अबाउट आवर चेयरमैन, करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सो यू शुड बी विजुलाइजिंग इट. वो कौन से डोमेन से थे, तो आप उनके बेसिस पे भी मैच करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Then how the evolution of quality management system in BEL started. So basically जो BEL focus करता है customers की satisfaction में and providing the quality services. तो how they have expanded, जैसे आपने talk सुना होगा, तो it would be coming it out as जैसे quality management system they started inspection oriented था. उसके बाद आता था TQM, also called as TORQ, that is total organizational quality enhancement. तो उसके बारे में they can just ask you the terminology. हाँ जी, आपको क्या पता है उसके बारे में. So that is for the satisfaction of the customers. Then it is Bharat Electronics Quality Institute. About the Quality Institute जो 1999 में क्रिएट किया गया था ताकि एजुकेशन या नॉलेज इम्पार्ट कर सके अपने कस्टमर सप्लायर्स को बहुत ज़्यादा क्वालिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड, राइट. देन अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स, व्हाट द इज द क्वालिटी एंड 2 इंसेपरेबल पार्ट्स ऑफ TQM. सो बेसिकली TQM के बारे में, टॉक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ BEL इज
the quality management, and for this they started a separate institution also, and for this they started the separated resources too. एक्सपोर्ट कौन कौन सी चीज़ें हम करते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. व्हाट आर द लीडिंग फर्म्स. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ हैं हमारे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेल के कहाँ हैं, बैंगलोर, गाजियाबाद, पुणे, ये आपको सारे पता होना चाहिए. चेन्नई, हैदराबाद, नवी मुंबई कहाँ कहाँ है. आपके एरिया के पास आता है तो दैट इज वाई यू कैन जस्ट हैव अ लिंकेज. सपोज आप बैंगलोर से आते हैं, मुंबई से आते हैं, सो दे कैन आस्क यू, अच्छा और कहाँ कहाँ हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, क्या आपको पता है, आपने कभी विजिट किया है. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आपके बेसिकली अलाइन करना एचआर ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि आप क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों यहाँ पे आना चाहते हैं, तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. R&D सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस करता है बेल, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1958. उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एज क्रिएट किया है ताकि वो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर पाए. सो वो भी आ जाता है आपका R&D सेक्टर में. कितना जाता है, 3 टायर R&D सेक्टर है इनके पास. तो R&D इज द मेन रिसर्च, क्योंकि उनका क्वालिटी मैनेजमेंट, टॉर्क के बारे में, बेल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डिफेंस रिलेटेड हैं और नॉन डिफेंस के रिलेटेड भी हमने कौन से हाईलाइट्स में लाए हैं. Then why was the Bell in the news recently? So basically what it helps in, it is the Make in India process, ताकि हमारी इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्टर मिल सके. Financial performances, yes, you should be aware कि what is the financial performance which is running for it. तो here I have given the thorough research, कहाँ कहाँ उन्होंने कितनी नेटवर्थ, कितनी अर्न की है, कितना फाइनेंशियल प्रॉफिट रहा है, तो वो चीज़ें अच्छे से एक बार रिसीव और पढ़ लेना इसको, राइट. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जैसे कितना ऑर्डर मिला है, कोचिन शिपयार्ड के साथ कैसे लिंकेज में आ रहा है, वो सारा आ गया आपका. सर्विलेंस रडार्स के बारे में, रेडियो बेस स्टेशन रिपीटर्स के बारे में. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अवेयर, ये रीड करना. उसके बाद आप EMS के बारे में, जो स्टार्टिंग में भी आपको बताया था. EMS जो आ जाते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, एंड विद द स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रा भी बहुत लीड किया है. 9 यूनिट्स बने हैं, डोमेस्टिक वाइज बहुत इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग. So optoelectronics components and assemblies, microwave integrated circuit assemblies, antenna manufacturing, ये सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है. Now what are the CSR activities? अभी तक आपने देखा मेक इन इंडिया प्रोसेस आ गया, कि कोचिन शिपयार्ड के साथ कितना भी प्रोजेक्ट मिला है इनको, कौन कौन सी यहाँ कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कौन सी हिस्ट्री क्या है. दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट बेल. नाउ कम्स द CSR एक्टिविटीज, जैसे कहाँ पे इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्री. सो इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्मार्ट क्लासरूम, स्टूडेंट्स लीडिंग, कोडिंग में आ जाता है, मोबाइल वैन फॉर स्क्रीनिंग, मतलब आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे यू आर अवेयर कि कहाँ पे स्विंग मशीन्स में भी ये हेल्प आउट कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, तो कहाँ कहाँ पे एक्चुअली इट इज़ हेल्पिंग. अवार्ड्स कौन से मिले हैं, डिजिटल चैम्पियंस अवार्ड मिला है, क्लाइमेट एक्शन अवार्ड चैम्पियन अवार्ड मिला है, इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मिला है, स्कोप एक्सेलेंस अवार्ड फॉर डिजिटलाइजेशन. तो ये कहाँ पे भी रिसेंट आपको अवार्ड सेक्शंस में भी पता होना चाहिए. सी व्हेन यू आर जस्टिफाइंग व्हाई यू वांट टू गो फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो जस्टिफाई इट ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स. इट कुड बी द विजन एंड मिशन दैट मैचेस विद योर्स. इट कुड बी द काइंड ऑफ CSR activities you are engaged in, that could be one of the domain. About your core interest areas related to the products or the projects which they are leading with, and you have an interest in that project also. So your interest and passion can be aligned towards it. Your career progression, growth, enrichment is in another segment. तो multiple segments आते हैं, और कुछ आप अपना subjectivity से obviously you can add in it. Now comes the most expected HR questions that could be asked. So very first is, आपको बेल के बारे में क्या पता है. अब ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है आपके, कितने यूनिट्स हैं बेल के, हेड ऑफिस कहाँ है, CMD कौन है, करंट डायरेक्टर इन HR कौन है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं बेल है, मिशन और विजन बता दीजिए, हमारे कस्टमर्स कौन से हैं, व्हेन वाज बेल फॉर्म्ड, व्हाट इज मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, और ये कब स्टेटस मिला था बेल को नवरत्ना का. हैव यू एवर विजिटेड बेल यूनिट को कभी विजिट किया हो आपने, कौन से डोमेन्स में, विच ऑफ द डोमेन वुड यू लाइक टू वर्क इन इफ यू आर इन द बेल. अब बेल इन न्यूज़, और मैंने रिसेंटली दिखाया भी था आपको कि बेल न्यूज़ में कहाँ था. नाउ द लिंकेजेस, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हमें एक्सपोर्ट कहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में कर रहे हैं, किस डोमेन्स में कर रहे हैं. अ टेबुलर फॉर्म आई हैव गिवन यू दैट. Then is history, future of the company, objectives क्या है, who is the minister of defense, do you want to ask us any question, बेल किस में मार्केट लीडर है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, मेजर कस्टमर कौन है, और डिफेंस प्रोडक्ट्स कौन से आते हैं, नॉन डिफेंस प्रोडक्ट्स कौन से आते हैं हमारे. यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर जस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो आपने डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़ा है अच्छे से, यू कुड रिवाइव अ बिट, यू वुड बी एबल टू आंसर एंड कॉम्प्रीहेंड दीज आंसर्स एट द एंड. Now basically coming to the HR questions, there is another documentation which carries all important essential HR questions related to Bell, related to your particular domain. So target it wisely and prepare it to the best.
and just start preparing for your interview. All the best, guys. Don't forget to download the documentation from the panel, and in case of any doubts, just pop up in the comment section. Take care and have a good day. Bye bye.